নমস্কার বন্ধুরা, গার্ডেনিং রিলেটেড ইউটিউব চ্যানেল পুষ্পকাউন থেকে অয়ন কথা বলছি। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা কিন্তু বাংলায় হবে না, বিকজ যে মানুষকে নিয়ে আজকে ভিডিওটি করছি আমি, তার পরিচয় তিনি নিজেই। হিন্দি এবং ইংলিশ দুটো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচে হবে ভিডিওটা। আর দেখে রাখুন, রোজ কিং এর ছাদে আমি দাঁড়িয়ে আছি, স্বনামধন্য সঞ্জয় মুখার্জি মহাশয়ের ছাদে। স্যার, ফার্স্ট অফ অল মেনি মেনি কংগ্রাচুলেশনস, মিস্টার আরশাদ স্যার, newly elected president of Indian Rose Federation. Sir, many many congratulations from Pushpa Kahun. Thank you so much. Thank How you. have you been today, sir? Oh, today I was relaxing after 4 days of strenuous hard work, moving around, just walking around, busy with the show, enjoying the flowers of Kolkata. Since 2014, I've been attending Kolkata, and I don't think so anywhere in India such a grand show is done. So massive contribution from Kolkata to India as far as roses are concerned, right from breeding to the technique of soilless culture, which I do not think so it is available anywhere in the world except Kolkata. Now, for the last 4 years, I've seen Kolkata is emerging in cut flowers too. Because what I saw on third was I was really surprised to see the amount of cut flowers which were there. And this time, no cut flowers were available from anywhere throughout India. For the basic reason that the trains were delayed by about 17 hours, 18 hours, and the flowers could not reach Calcutta. Exactly. So now Calcutta is on the top of India's list as far as roses are concerned. It was, and it is still there. There's no doubt about it. Nobody can challenge that. Yes, absolutely, sir. Sir, you are a newly elected president of Indian Rose Federation, and it's very proud moment for us. You are still in Kolkata, and you are going to fly on tomorrow, most probably. Yeah, tonight. Tonight. Okay. And sir, I have been associated with your culture, with Bengal culture, Bengal rose culture. Sir, I would like to ask you one thing, that IRF is a mother body. Could you please tell me that how it works? See, IRF is a parent body of all rose societies of India. At present, we have some around 19 rose societies affiliated with IRF, working under the banner of IRF. And IRF represents India at the World Federation of Rose Societies. Uh, in 1968, the first World Convention was held, and India was there as a founder member, represented by Dr. Vishnu Swarup of Indian Agriculture Research Institute. Right. So we are with the WFRS for the last since 1979. We are working with WFRS, and we were lucky. Not lucky. We have worked our way. Our country has worked this way. We had the opportunity of having a vice president to represent India in 2012. Then that was followed by a World Regional Conference in Hyderabad 2014. Then once again, after looking at Hyderabad, the mindset of the Western country people changed. And then we had the 2020 convention. In 2022, we were allotted our nominated member, Mr. Sushil Prakash. He was elected as a treasurer. Hmm.
Then in 23, we went for a world convention, Right. and in front of us was China. However, we were given the highest number of ports, Hmm. and India got the world convention, which will be held in 2028 in Bhopal. In 2025, Sushil Prakash was elected as president of WFRS, World Federation of Road Society. So India is now in a strong position worldwide, not only from Asia but worldwide. Hmm. So we are not far behind. सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग दैट आईआरएफ कितना स्टेट्स के साथ काम करते हैं? बहुत सारा स्टेट्स है तो। All over we have these 5 zones: हम्म। north, south, east, west, and central, and all are connected with us. Like in southern state, we have the हम्म। Ooty Road Society. Uh, then Hyderabad हम्म। Road Society is there. Then if you come to west, there is Vidarbha Road Society, Mumbai Road Society, Nashik Road Society, Amaravati Garden Club, Solapur Road Society, Pune Road Society. एग्जैक्टली। राइट। Then in the central region, when we go, there is Malwa Road Society, MP Road Society, and Jabalpur Road Society. जबलपुर। Jabalpur. राइट। MP Road Society is in Bhopal. हम्म। Malwa Road Society is in Indore. राइट। So we have practically covered throughout all the 5 center zones. That is all over India. सर कौन सा स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू यू? Pune was leading. ओके। Pune is still leading. They have a very professional team. And on the second list, I would say now Bengal is coming up so fast as flowers are concerned and members are concerned. हम्म। They have a very strong team of youngsters. And I think now Kolkata is on the top. कोलकाता, थैंक यू Yeah. सो मच सर, इट्स After, वेरी after looking at the convention, एग्जैक्टली। Kolkata is on the top. As far as cut flowers and horticulture is only there in Kolkata, nowhere else in India. Yes, because we have seen that there are more than 800 pots and 400 plus delegates came in Yeah. Kolkata on 42nd Rose Convention, All India Rose Show, I think and that was the highest number. yes sir, everyone is spellbound. That was And the highest number of delegates registered. yes sir, yes sir, So far, they've not crossed to 70 to 80, but this was the highest registration so far. exactly. So it's a very proud moment for I'm us. happy. I'm happy with it. Us, really. And most of all, I'm very happy is the younger generation has taken a lot of efforts to coincide. Sir, what will be your vision? Could you please My tell me? vision is to ensure to bring in more youngsters. You see, some of the road societies have become inactive. So my target is to revive those road societies. Hmm. In some urban areas, especially I'm talking about Mumbai, we got no place to grow roses because all these high-rise buildings are coming up, bungalows are going up. So even if you stay in a high-rise building and you have some plants in a balcony, the society objects. If the person doesn't take them out, the next day municipal people come over saying that यहाँ से डेंगू आ रहा है. So I don't know where are we going. Right. We talk about environment, putting up more trees. Where is the place in urban cities to put trees? They are being hacked off. Sir, one thing that it's a really privilege and honor that I have been taking your interview, and really when I have seen the
Bengal pot culture. I was really spellbound. How it possible that in a one pot there are so many roses has been bloomed in a particular date. So That is the technique which these boys are doing now. And I think Sanjay hmm, has a very good team. yes, He's been guiding them to the. You see, if you have knowledge, you have to definitely disperse it rather than keep it with you. right, sir. If you don't disperse knowledge, then the knowledge becomes irrelevant. Sanjay is doing a good job as far as this thing is concerned. Just for him, we have seen this kind of mega show in Kolkata. See, यहाँ के जो पॉट कल्चर है ना, Hmm, is basically to the environment, the soil, the water. ये सब responsible चीजें हैं. और people have tried in different areas. Like people have tried in Pune, people have tried in Delhi, but they could not get the results what we get to be here. So environment takes a lot of things. Environment is their soil and most important water. Secondly, the dedication. Without dedication, you can't do anything. 2014, when I had come for the first time to see his spots, he had some 9 or 10 students working under him. But within the last 10 years, it has gone to around 84 huge in number. Kolkata itself. Yes. And all over India, there are so many of his followers Hmm. who are learning this technique. But I don't think so the results will be that good as far as Kolkata is concerned. This As is I a told you, it is basically soil, water, and the environment. yes, sir. Absolutely right, sir. This is the reason we, those who are from Kolkata, we Kolkatans are recognized him as a rose king because in Kolkata क्या होता है सर गर्मी बहुत होता है Yes, yes. एडवर्स सिचुएशन में हम लोग ये गुलाब करते हैं और ठंड बहुत कम टाइम के लिए जो Short स्पैन period. होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है ठंड तो विंटर्स उतना रहता नहीं है मैक्स मैक्स टू मैक्स 15 to 20 days बाकी टाइम पूरा गर्मी का मौसम ही रहता है कोलकाता Right. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो डेडिकेशन ये जो लोग काम करते हैं तो उसके बारे में क्या सोच है सर नहीं, आपका hats off to them. Hats off to them. They're so good. अभी this time the temperatures have dropped. ऐसा सर्दी तो नॉर्मली बंगाल में नहीं होता. But Right. This time the winters are totally different. कल ही मैं गया हुआ था, जगपुर गया था और रणवीर के और अशोक का देखा मैंने. तो ग्राउंड में उनके पास जो फ्लावर्स थे, अरे they were just beautiful. Yeah. Why once again environment and temperatures they control things. जो साइज मैंने फ्लावर्स की देखा वो I was really shocked. They were awesome. एब्सोल्युटली सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे ये जो बेंगलुरु सोसाइटी है ये जो पहले का जो कल्चर था और आज का जो कल्चर है अभी का जो कल्चर है ये दोनों में अंतर क्या है डिफरेंस क्या है सर कल्चर तो सेम है, उसको इतना पिकअप नहीं हुआ, बूस्ट नहीं मिला था. समझे क्या? कल्चर तो यहाँ पर बहुत वर्षों से है, सॉइलिश कल्चर, और उसको आगे बढ़ाने वाला कोई चाहिए था. और संजय ने वो काम कर दिखाया. एग्जैक्ट क्योंकि पहले इस तरह का गुलाब और इस तरह का प्लांट इतना ब्लूमिंग हाई लेवल में हम लोग कभी देखे नहीं है जो लास्ट 2-3 इयर्स में हम लोग देख रहे हैं. हाँ, 2014 में मैं आया था ना, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, एक कट फ्लावर्स थे और अराउंड 60 प्लांट्स, बस उतने ही थे. कट फ्लावर्स वाज बहुत बुरे हाल में पड़े थे, इतने इतने से इतने इतने स्टॉक के ऊपर
गुलाब रखे हुए थे। हम्म। बट फिर वो ओवर द टाइम अलग अलग जगहों पे विजिट करने के बाद में लोगों को पता चला कि कट फ्लावर्स के भी कंपटीशन में लेना चाहिए, और 2020 के अंदर रिजल्ट्स उसके अच्छे आए थे। 2020 के बाद में अभी के रिजल्ट्स 100% मोर इंक्रीज हो गया। तो इस बार बाहर का कोई भी फ्लावर नहीं आ सका ना, मैं जैसे आपको पहले बताया था, टोटल कलकत्ता के फ्लावर्स। राइट। तो दोनों लेवल के ऊपर देव कम ऑन द टॉप। एग्जैक्टली सर, 100% अग्री। सर नेक्स्ट विजन क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आप लोगों का? आईआरएफ का नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगा? प्लानिंग ये है कि आईआरएफ को और स्ट्रांग बनाना है, हम्म। और उसको स्ट्रांग बनाना है। अभी हमारे पास कंपटीशन है, वर्ल्ड में से कंपटीशन है, मगर वो कंपटीशन में भी हमको जीत के बाहर आना है। राइट। या एग्जैक्टली। और आप अभी हमारे सामने कंटेंडर्स है एशिया में, जापान और चाइना। हम्म, कोशिश करेंगे कि वो लेवल पे आ जाए हम भी। डेफिनेटली होगा सर, और वो डेफिनेटली हमारी 100%। कोशिश दिखाएंगे हम 2028 100%। भोपाल में वर्ल्ड कन्वेंशन। 100%। 100% पॉसिबल होगा सर। जी संजय दा रहेगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। ठीक है। एंड आई बिलीव दैट बाहर का जो कल्चर है, वर्ल्ड बेस्ड कल्चर है, हम लोग का कोलकाता के जैसा और होगा ही नहीं सर। क्योंकि आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ पॉट कल्चर। ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेशन के लिए बोलिए, यानी लेट द वर्ल्ड नो कि वी आर नॉट फार बिहाइंड। एग्जैक्टली सर। क्या सर थोड़ा बहुत दो चार बात, पॉट कल्चर तो बहुत हम लोगों ने देखा, कट फ्लावर का थोड़ा कोलकाता का जो पोजीशन है, थोड़ा आपके नजरिया से बोल दीजिए सर। मैं इस बार बता रहा हूँ ना हम्म कि जो कट फ्लावर का सेक्शन में देखा, हम्म तो बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उनके साथ में कम्पीट बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर ली, और वो लेवल पे आ गए अभी। आई थिंक अब ऐसा होगा आगे हम्म कि कलकत्ता से भी फ्लावर्स आएंगे दूसरे स्टेट्स में कंपटीशन के लिए, सही और है। वो आएंगे 100% आएंगे। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, जो लोग ब्रीडर है बंगाल में, जो ब्रीडर है, या तो मान लीजिए ब्रीडर होगा, तो वो लोग बहुत डेडिकेशन से ब्रीड करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लॉयल्टी के उतना कुछ कुछ भी नहीं आता है सर। तो आपका नजरिया, आपका विजन इस बारे में क्या है सर? देखो, एज फार एज रॉयल्टी इज कंसर्न हम्म ब्रीडर्स लोग का, तो मैं हमारे जो गवर्नमेंट के लॉज है ना, पेटेंट लॉज, वो एक अलग है। दूसरा, दूसरी कंट्रीज के साथ में भी हमारे कोई लॉज नहीं है। यूएसए, यूके, हम्म जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ तक कि जापान है, चाइना है, उनके साथ में कोई अपने वो है ही नहीं। हम्म तो ये वजह से अपने ब्रीडर्स जो है अपने प्लांट्स दूसरी जगह नहीं बेच सकते, इलीगली चले जाते। क्या हम लोग इलीगली चले जाते, बट अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज जैसा करने जाओ तो वो है नहीं, उसके ऊपर भी हमको बहुत काम करना है। और ये वजह से 2028 के अंदर मैक्सिमम हमको इंडियन वैरायटीज सिखाना है। हम्म क्या क्योंकि उनके भी जो नई वैरायटीज है वो अभी आना बंद हो गई है। अगर कुछ आ भी जाते हैं तो वो लीगली नहीं आते, इलीगली आ जाते। क्या कोई राइट। दो चार प्लांट बैग में छुपा के लेके आया, ऐसे हम्म करके नए प्लांट आ जाते। तो राइट। उसका हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इंडियन ब्रीडर्स को कुछ मिलना चाहिए। सही है। इंडियन ब्रीडर्स को 4-4 5-5 बरस वो लोग मेहनत करते हैं, 50 रुपये नहीं मिलता है एकदम रॉयल्टी। सही है। राइट। 100% अग्री सर। वो एंगल के ऊपर भी आपको स्टडी करना है। अभी सिंस 2028 आ रहा है तो अच्छा मौका है वो लोग से बात करने का हमको। हम्म क्या और सर बंगाल ब्रीड एक फेमस ब्रीड हम लोग देखा, बहुत सारा फेमस ब्रीड है, बट लास्ट ईयर मैंने देखा है औरित्रो नाम का एक ब्रीड जो स्वपन हलदर का ब्रीडिंग है, वो बहुत फेमस हो चुका है बंगाल में। एवरीवन इज लुक आफ्टर दैट प्लांट एंड सीडलिंग। तो
बंगाल ब्रीड के लिए थोड़ा कुछ बोल दिए सर, मतलब क्या क्या चलता देखो है आपके दिमाग में? बंगाल में ब्रीडिंग 1935 से स्टार्ट हुआ है। हम्म। और उसके बाद में DS भट्टाचार्य जी के जो थे, उनके तो ऑफिशियली ये गवर्नर्स लोग लेके जाते थे हम्म। और नेशनल रोज सोसाइटी के अंदर प्लांटेशन करते थे वो लोग। ठीक। क्या पहले चलता था वो टाइम पे, गवर्नर्स लेटर लिखते थे भट्टाचार्य जी साहब को, उनसे प्लांट्स मंगाते थे। पहले क्वाइट ओपन था, मगर अभी कुछ स्ट्रिक्ट लॉज आ गए जैसे हर कंट्री के। तो अमेरिका से आप एक पत्ता नहीं ला सकते हो, या यूके से या जर्मनी से नहीं। यू हैव टू गो थ्रू द चैनल, जो गवर्नमेंट ने चैनल बना के रखे हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ लेने जाओगे कि चलो मैं अमेरिका ले जाऊँ या यूके लेके जाऊँ, तो दैट इज नॉट अलाउड। राइट। अभी कितनी कंट्रीज के अंदर वो स्मगल्ड होके जाते हैं, जैसे कि एशिया का माल जाता है यूरोपियन कंट्री यूएसए में, तो यूएसए यूरोप का माल स्मगल होके एशिया पहुंच जाते हैं। ये सब चक्कर चल रहा है। राइट। जैसे पेटेंट लॉज है जो अफेक्ट कर रहे हैं हमको। देखते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे गवर्नमेंट से क्या सर, बेनिफिट मिल सकता है। सर आपसे बहुत उम्मीद जुड़े हैं सर हम लोगों का, क्योंकि आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू सर, यू आर न्यूली इलेक्टेड एंड IRF इंडियन रोज फेडरेशन प्रेसिडेंट, मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग। नहीं, कोई एक सिंगल आदमी का काम नहीं है, इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। राइट, राइट सर। एक अकेला आदमी नहीं चला सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, टीम वर्क होता है। राइट, एग्जैक्टली। और फॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम 2010 ये टीम वर्क हुआ है, जो रिजल्ट आएंगे वो ये अकेला नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली राइट सर। जब तक कि तुम्हारी टीम नहीं है साथ में, तो यू कांट डू एनीथिंग। राइट सर। और अभी भी मैं मेरे जो पूरा हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्निंग काउंसिल के, सबकी राय मशवरे लेके चलते हैं और आगे भी लेके चलेंगे। सबको अपनी अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, हाउ वी कैन डू बेटर। Absolutely, yes. Sir, one thing I would like to ask you, that once Mr. Viru sir, Mr. Viru Raghavan, sir told that after him the legacy will go on and Mr. Sanjay Mukherjee will hold the button. तो ये जो बैटन है संजय सर के हाथ में रहेगा, तो इस ये बात सहमत हो सर आप? दिस इज व्हाई ये मिसेस गिरिजा वीर राघवन से सुना था, वो स्टेज पे अनाउंस करी। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो वीडियो मैंने देखा है। किया। नाउ लेट अस सी हाउ मच गिरिजा वीर राघवन शेयर करेंगे संजय के साथ में। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। ठीक है। I believe Mr. Sanjay Mukherjee is the right person. नहीं, डेफिनेटली ही इज नॉट अ कमर्शियल पर्सन, Exactly. ही इज नॉट अ कमर्शियल पर्सन। और कोई भी ब्रीडर है ना यहाँ पर कमर्शियल नहीं है, वेदर इट इज राइट फ्रॉम मिस्टर भट्टाचार्य जी की नर्सरी थी, वो अपनी वैरायटीज बेचते थे, वही 1 रुपया 8 आना 2 रुपये में बेचते थे। Bohurupi is a very recognized ID. हाँ, एक BS भट्टाचार्य जी वाइट थी जो कैलिफोर्निया के अंदर थी। क्या Exactly, sir. Right. तो कोई भी अपने यहाँ के जो ब्रीडर है राइट फ्रॉम इंसेप्शन, कोई भी कमर्शियल उसका वो नहीं उसके। आज संजय है, रणबीर खुद की नर्सरी से करते थे, केस जी करते थे, अपनी नर्सरी से अपनी खुद की वैरायटीज बेच देते थे। ऐसा कुछ बेनिफिट रॉयल्टीज वगैरह कुछ भी नहीं मिली। क्या वीर राघवन साहब को इंडिया में रॉयल्टी मिली तो 5 रुपए की भी नहीं मिली, वो भी फ्री करते थे अपने खुद के कॉस्ट के ऊपर। ऐसे संजय भी कर रहा है, सौरभ कर रहा है, गणेश है, आशीष है, हंडे साहब है, कितने ब्रीडर्स आके चले गए। नोबडी हैज अर्न्ड अ सिंगल रुपी इन इंडिया। क्योंकि मैं आपको जैसे बताया ना कि लॉज यहाँ पर बड़े अजीब है।
सर बट लॉयल्टी मिलना चाहिए क्योंकि इन लोगों का डेडिकेशन और तो मिलना ही चाहिए ना बाबा, सैक्रिफाइस जो है ये लोग याद रखेंगे। मिलना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठता है इसके ऊपर। डॉक्टर ददलानी ने भी बहुत अच्छी बुक लिखी है, इंडियन रोजेस, और उसको आगे भी और बढ़ाने का हम लोग को कलेक्शन ऑफ डेटा, वैरायटी थी, वो सब लेके करेंगे उसके पीछे भी। अभी मेरे को 2-3 नर्सरी से मैसेजेस आए ले हम्म कि अबाउट ब्रीडर्स ऑफ इंडिया, उनको कुछ वैरायटीज में इंटरेस्ट है, लेट अस टॉक। हम्म मगर वंस अगेन मैं आपको बोलता हूँ, ऑफिशियली नहीं होने वाला है, वो सब अनऑफिशियली करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा अनऑफिशियली करना पड़ेगा। कोशिश तो जारी है हमारी। राइट। और 100% हम लोग कर पाएंगे फ्यूचर में। सर आप जब भी आते हैं कोलकाता में तब आपका रेयर रेयर जो बुक्स है, रेयर वैरायटी जो बुक्स है, वो आप किसी को नहीं देते, ओनली संजय दा को ही देते हो, ये सही है क्या? संजय को इसलिए देता हूँ कि वो बहुत डेडिकेशन से काम करता है क्या, और एट सच ए यंग एज इतना डेडिकेशन में देखा नहीं, वेदर इट इज ग्रोइंग, वेदर इट इज ब्रीडिंग या नॉलेज दूसरों को देना, उतना डेडिकेशन में मैं देखा नहीं। सो आई प्रिफर हिम। उसको 2012 के अंदर फेसबुक के ऊपर मैं बैठा हुआ था और संजय का देखा मैंने। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद देखा मैं ARS का कैलेंडर, वो सेम पॉट्स है ना ARS के कैलेंडर पे थे। वही मैंने इसको कांटेक्ट किया संजय को कि भाई तुम इतने छुपे हुए क्यों थे। फिर मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 2013 में मैं आया, संजय से मिला और पता चला कि कलकत्ता में ये हिडन कल्चर है, वो भी सॉइललेस। So that was my duty to bring it up, let the world know। पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता था सॉइललेस कल्चर क्या है। थ्रू संजय ये मेरे को मिला और वी स्टार्टेड शोइंग इट टू द वर्ल्ड। हैदराबाद में वर्ल्ड इंडियन कॉन्फ्रेंस में 15 पॉट संजय के रखे थे, हम लोग मंगवाए थे। उसको ले आना बड़ा हेक्टिक काम था, एक आसान काम नहीं था उसको ले आना। तो अल्टीमेटली 15 पॉट पहुंचे और जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे और इंडियन डेलीगेट्स थे, वो देख के ना सब वो हो गए तो ये तो हम कभी देखे ही नहीं थे। राइट। तो कोई चीज को छुपा के नहीं रखो, उसको आगे लेके जाने की कोशिश करो। संजय सर बेसिकली प्रूवन इज ओर्थ। हाँ, संजय सर हैज प्रूवन इज ओर्थ, उसके He has अंदर that। जो है वो लोगों को दिखा दिया, इसीलिए सर ही इज हाईली फोकस्ड। और कितनों को ट्रेन भी कर रहा है ना, हर बाजू पे। राइट राइट, बहुत सर। हाँ, बहुत से लोगों को, और सब कोशिश कर रहे हैं। मगर एज आई टोल्ड यू कि इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, दे प्ले द बिगेस्ट थिंग। राइट। और वो दूसरी जगह अवेलेबिलिटी नहीं है, पूना में नहीं है। बहुत से लोग जैसे कि इंदौर में ट्राई कर रहे हैं, दिल्ली में ट्राई कर रहे हैं, पूना में ट्राई कर रहे हैं, क्या भोपाल में अभी ट्राई कर रहे हैं, फिर चेन्नई में देखा, नडियाद गुजरात में है। और किसको भी यानी वो लेवल पे नहीं मिल रहा है। वो लेवल पे इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये यहाँ के टेम्परेचर्स, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का पानी है, यहाँ का सॉइल है, ये भी बहुत बड़ा गेम खेलता है ना, हर जगह खेलता है। राइट। सर इस साल भी जो गोल्ड मेडल मिला है मिस्टर मुरली मनोहर जाना को, तो बंगाल में हर एक साल मतलब 8, कुल मिला के देखा जाए तो 8 गोल्ड मेडल बंगाल अचीव कर चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा 2-1 बात बोलिए सर। इसकी वजह ये है ना कि बंगाल के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ और आज भी बंगाल के ब्रीडर्स टॉप कर रहे हैं।
क्या ठीक है, बाहर भी ब्रीडिंग हुआ है, मगर जितना सक्सेस ब्रीडर्स को बंगाल में मिला है और कितने भी नहीं मिला है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स वेस्ट बंगाल को गए, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम पीएस भट्टाचार्य जी, हम्म, कल्याण चक्रवर्ती, सुब्रत सर। सुब्रत घोष, हम्म, रणबीर माइती, तपन माइती, संजय मुखर्जी, सुब्रत घोष साहब, हम्म, और अभी मुरली वानर जाना को एग्जैक्ट। तो फिर 8 होता है, 8 हो जाते हैं, तो बंगाल में 8 गोल्ड मेडल। 8 में राइट, अभी तक के। एग्जैक्टली। और वो गोल्ड मेडल दिए, ये विजय पोकरना गोल्ड मेडल दिए जाता है, जो ओनली फॉर रिसर्च हम्म, एंड ब्रीडिंग। क्या विजय पकड़ना जो गोल्ड मेडल होता है। जी Right, एकदम से। हमारे पास 2 गोल्ड मेडल्स है। हम्म, एक पहले गुरचरण सिंह गोल्ड मेडल था, हम्म, तो वो खत्म हो गया। अभी नवाब शाह आलम खान गोल्ड मेडल है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वगैरह, जो पार्टिसिपेशन है मेंबर्स का, उसके लिए दिया जाता है। और ब्रीडिंग और रिसर्च के लिए विजय पोकरना गोल्ड मेडल है, वो ओनली फॉर ब्रीडर्स। उसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वेस्ट बंगाल का ही है। पिछले साल जो मिस्टर मेघबरन गुइन सर और निमाई बाबू को जो मिला था, निमाई मुखर्जी फ्रॉम निमाई को भी ब्रीडिंग के लिए मिला है, सॉरी नो, राइट, हाँ, निमाई नौ हो मुखर्जी। गया। निमाई मुखर्जी इज फ्रॉम विजय पोकरना अवार्डी। हाँ, Mr. Nimai Mukherjee is from Shikarpur SK Rose शिकारपुर, and Horticultural Farm. राइट। I oftenly visited his farm and along with Mr. Megburn Guin. अभी और भी आ रहे, नाभा कुमार दलाल है, सौरभ मित्रा है, स्वपन कर रहा है। क्या मिलेगा धीरे धीरे सब। बहुत सारा, मतलब we are waiting, we are waiting. कोई Good. है, कोई है। Thank you. अशोक माइती है, Exactly. काफी लोग हैं लाइट में। सही है तो सर। मैक्सिमम ब्रीडिंग वर्क इज इन बंगाल होती, नोवेयर एल्स। यस सर, बहुत कम है दूसरी जगह पे। यस सर, यस। सेकंड अगर लाइन में जाएंगे हाँ। तो ब्रीडिंग वर्क इज बीइंग डन इन महाराष्ट्र। डॉक्टर एन.वी. शास्त्री, फिर डॉक्टर हंडे थे, एम.एन. हर्डीकर साहब थे, और अभी नए जो है उसमें गणेश मौर्य है, आशीष शिर्के है, नीलेश आप्टे है, They are from Maharashtra. और महाराष्ट्र। Maharashtra, right? बाकी और कोई स्टेट में मैं आई डोंट सी। साउथ के अंदर थे वी राघवन साहब थे, Biragaon sir, right? और कस्तूरी रंगन साहब थे। राइट सर। हर एक को ये वीडियो पसंद आएगा, शेयर कीजिए, और अगेन आई एम सेइंग हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस सर दैट यू आर इलेक्टेड एज ए आईआरएफ प्रेसिडेंट। फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं। गार्डनिंग रिलेटेड पुष्पकाउंट चैनल टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए, और आपसे बहुत सारा उम्मीद जुড়ে हुए স্যার। বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোডে। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके सर को कांग्रेचुलेट कीजिए। नमस्कार।